Hello everyone, welcome to the EcoBiz channel. So many students are demanding that we need lectures related to macroeconomics. So now I came with the first lecture of macroeconomics. So without wasting the time, let's start. So we will start today with the basic school thoughts. We should know the macroeconomic school of thought first, because I'm teaching on the behalf of the graduation level. So uh, the major concept of the macroeconomics we should know before starting it in going into the depth of the macroeconomics. We should know the two basic schools of thoughts, that is classical thoughts and Keynesian thoughts. So today we will focus on classical economics or classical thoughts of economics. So let's start. So I will start by giving a brief overview of both classical and Keynes theory. So there is a timeline of the evolution of macro schools. I made a timeline. So in the 18th and 19th century, Adam Smith and Ricardo came up with the classical idea. Their idea was classified as a recognized as a classical economics. So if I want to give you one line word for the classical economics, I will say that supply creates its own demand. So now understand what this means. So let first understood what happens in the classical economics. First, get this idea. In the classical economics, there is the full employment. Every person will be employed in the economy. That is, output will be at y star, equilibrium be at the y star, and everyone in the employed in the economy. So we get the output y star. There is no intervention of the government in the uh, in the production and the consumption of the goods and services. So the mainly their focus is on the supply side. Now in 1929 and 1933 there is a Great Depression comes. In the Great Depression, what happens is the supply of the goods is greater than the demand. So we know that classical said that the supply creates its own demand, but in the Great Depression period, supply of good is more than demand. Now demand is low and supply is high. So how the goods are consumed? So there is a problem. Then there is Keynes schemes. Keynes theory comes there at the point of the Great Depression time. So अब यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आ जाता है सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए. गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवेन करती है. सो द फर्स्ट कंडीशन इज दैट इन द कंट्रोल इज दैट गवर्नमेंट आएगी. अब फॉर एग्जांपल नरेगा लेके आई एम्प्लॉयमेंट के लिए, सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए. तो यहाँ पे मेनली फोकस होता है डिमांड के लिए, फोकस होता है डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई. डिमांड गुड्स प्रोड्यूस कर लो, गुड्स डिमांड जो होता है पीपल डिमांड करेंगे तो सप्लाई अपने आप हो जाएगी. सप्लाई उसके अकॉर्डिंग होगी, डिमांड के अकॉर्डिंग. सो यहाँ पे ये कंसेप्ट था. अब ठीक है. तो अब बेसिकली अगर ग्रेट डिप्रेशन की बात करें तो अब अगर सप्लाई बढ़ जाएगी डिमांड से तो अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि कंजप्शन तो हो नहीं रहा. कंजप्शन तो हो नहीं रहा तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, पीपल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे और आउटपुट, फाइनल आउटपुट जो हमारा डिमांड जो करेगी, जो इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा वो हमारा गिर जाएगा. क्योंकि इक्विलिब्रियम नहीं है. इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, सप्लाई जहाँ पे डिमांड की इक्वल होती है. इक्विलिब्रियम नहीं है और सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, तो हमारा आउटपुट डिमांडेड कम हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम आउटपुट भी हमारा कम हो जाएगा. अब ये कुछ न्यू क्लासिकल थ्योरी है, ये हम बाद में देखेंगे, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा.
वैसे सिंपल ही है। इसके बाद न्यू क्लासिकल थ्योरी भी आती है, फ्रेड मार्शल और एसी पिग्यो ने दी थी अर्ली 20th सेंचुरी में, वो बाद में बात करेंगे। अब मॉनेटरिस्ट और रियल बिजनेस साइकिल थ्योरीज भी आ जाती हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन बेसिकली जो थ्योरीज हैं क्लासिकल और कीन्स थ्योरी हैं, इसी यहीं से वो लोग आके थ्योरी गई हुई हैं। तो आपको बेसिकली ये दो थ्योरीज पता होनी चाहिए, तभी आपको आगे जाके समझ में आएगा। तो मैंने ये आपको अभी बेसिक ओवरव्यू दिया था क्लासिकल और कीन्स को, अभी हम डेप्थ में क्लासिकल इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। So this lecture is basically focused on the classical economics. Let see in what in how many parts we can cover this. I will try to cover in one or two part. Let's see. So classical theory में क्या बोलते हैं? क्लासिकल थ्योरी एक रेवोल्यूशन है मैकेंटलिज्म। वेट ए सेकंड गाइस, वेट ए सेकंड। सॉरी गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो क्लासिकल थ्योरी क्या है? इट्स ए रेवोल्यूशन अगेंस्ट मैकेंटलिज्म थ्योरी। एक मैकेंटलिज्म भी थ्योरी है जो क्लासिकल से पहले आई थी, उसके बारे में बात करते हैं। मैकेंटलिज्म एक क्या था? मैकेंटलिज्म में देखो, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, जब ब्रिटिश इंडिया आज़ाद हुआ था, मतलब इंडिया आज़ाद होने से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले, तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हमको सबको पता है। ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनीज की, ऐसी पोर्टुगीज की कंपनी थी, डच की कंपनी थी, फ्रेंच कंपनीज थी, ठीक है। तो ये इंडिया में इनकी प्रेजेंस थी। तो इसमें क्या था, सेकेंड, तो इसमें था कि मैकेंटलिज्म में क्या था, मैकेंटलिज्म थॉट वाज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ द नेशन स्टेट इन यूरोप ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी। एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इनका क्या मेनली इनका पर्पस क्या था कि इनको था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन एनकरेजमेंट देना है, लाइक मींस फॉर इनका पर्पस था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन देना है। और इनका मेजर जो वेल्थ का एसेस करने का था वो बुलियन था, जिसको हम गोल्ड गोल्ड भी बोल देते हैं। इन टर्म्स ऑफ बुलियन, बुलियन इज गोल्ड। सो ये बिलीव करते थे कि बिलीव इन द नीड फॉर द स्टेट एक्शन टू डायरेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटलिज्म स्टेट। जितना ज़्यादा गोल्ड होगा उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, उतना ज़्यादा कंट्री के पास वेल्थ होगा और उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी कंट्री की। सो ये इनका मैकेंटलिज्म थ्योरी का पॉइंट था। अब फ्रेंच, पोर्टुगीज, डच जो थी ये आउटपोस्ट कंपनीज थी, इन्होंने ऑपरेट किया। अब इनका था गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, जितना ज़्यादा गोल्ड एक्सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा पावरफुल और रिच इकोनॉमी होगी, गोल्ड जितना ज़्यादा होगा और इम्पोर्ट जितना ज़्यादा कम करेंगे, ठीक है। तो ये इनका पॉइंट था मैकेंटलिज्म। लेकिन अब मैकेंटलिज्म था जो था उसके अगेंस्ट था क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी जो एक रेवोल्यूशन था मैकेनिकलिज्म के अगेंस्ट। तो लेट्स डिस्कस इन दी क्लासिकल थ्योरी में आउटपुट डिटरमिनेशन जो था वो तीन फैक्टर से होता था, लेबर, एम्प्लॉयमेंट और रियल फैक्टर्स। तो ये जो हमारा आउटपुट डिटरमिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, रिमेंबर दिस। सो आउटपुट डेफिनेशन लेबर एम्प्लॉयमेंट से बेसिकली होता था, लेबर, एम्प्लॉयमेंट और रियल फैक्टर्स होते थे। और आउटपुट बेसिकली लेबर और एम्प्लॉयमेंट से डिटरमाइन होता था, ठीक है। अब क्लासिकल और कीन्स में मैं बेसिक डिफरेंस बताता हूँ यहाँ पे आपको। बेसिकली तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन का ही होता है मेजर डिफरेंस। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है गवर्नमेंट क्लासिकल, तो यहाँ पे धक्का देने से आगे बढ़ेगी नहीं, यहाँ पे धक्का का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे अपने आप इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में रहती है, सप्लाई क्रिएट सिर्फ ऑन डिमांड, ओके। तो यहाँ पे कीन्स के अंदर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे आउटपुट इधर है, एम्प्लॉयमेंट इधर है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को धक्का देना पड़ेगा आगे जाने के लिए, तभी तो इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, तभी तो आउटपुट बढ़ेगा जब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। तो गवर्नमेंट विल ट्राई टू मेक द इकोनॉमी एट द फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज द आउटपुट, okay। So the basic difference is this.
To classical economists, the equilibrium level of output at any time was a point of the full employment. ये मैंने आपको बता दिया, full employment में equilibrium level of output and the employment होगा classical theory में. Only full employment points out could be the position of even short run equilibrium. Short run equilibrium में भी full employment की position जो होगी वही equilibrium होगा short run में. अब फुल इम्प्लॉयमेंट आउटपुट 5 स्टार मैंने आपको पहले बताया था, वाई स्टार पे होगा फुल इम्प्लॉयमेंट आउटपुट जो होगा हमारा. अब यहाँ पे लेबर भी एन स्टार होगी, यहाँ पे लेबर को हम एन से डिनोट करेंगे. अब पूरे चैप्टर में हम एम्प्लॉयमेंट होगी जो हमारा आउटपुट है बेसिकली फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट जो है फैक्टर्स बता रखे हैं मैंने यहाँ पे. फैक्टर्स कौन कौन से डिपेंड करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट के लिए. एक तो हो गया लेबर, एक हो गया एम्प्लॉयमेंट, एक हो गया वेजेस और एक हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट और हो गया प्राइस. बेसिकली जो मेन फैक्टर्स हैं वो लेबर और एम्प्लॉयमेंट ही है, वेजेस भी है, वेजेस भी डिटरमाइन करेगा. ये तीन फैक्टर्स हैं. तो ये बेसिकली वेरिएबल्स, इसको आप वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद वाई स्टार और आउटपुट भी बोल सकते हैं. ये मैंने बता ही दिया आपको. क्लासिकल वाज रेवोल्यूशन अगेंस्ट मैकेंटलिज्म की थ्योरी मैंने आपको बता दी है. और क्लासिकल्स अब रियल फैक्टर्स पे फोकस है, ये नॉमिनल फैक्टर्स पे फोकस है. ठीक, जो ये मैकेंटलिज्म थ्योरी है, क्लासिकल ने क्या बोला, गोल्ड मनी जो है वो नॉमिनल फैक्टर्स है, दे जस्ट फैसिलिटी इन ट्रेड एंड नॉट डिटरमाइन आउटपुट. वही बात है मैकेंटलिज्म थ्योरी की, जितना ज्यादा गोल्ड होगा उतना ज्यादा ट्रेड होगा, उतना ज्यादा एक्सपोर्ट्स होगा और इंपोर्ट्स कम होगा तो ही ज्यादा रिच और प्रॉस्परस इकोनॉमी होगी. तो ये मैकेंटलिज्म ब्रिटिशर्स के टाइम पे इकोनॉमी मतलब की आइडियोलॉजी थी. लेकिन क्लासिकल्स की जो आइडियोलॉजी थी वो थी रियल फैक्टर्स के ऊपर कि कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी, ये जितना ज्यादा होगा टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट उतना ज्यादा आउटपुट होगा, उतना ज्यादा कंट्री रिच और प्रॉस्परस होगी. ठीक है, तो ये क्लासिकल्स का थ्योरी था. मनी सप्लाई वो उसी में आ जाता है नॉमिनल फैक्टर में. ठीक है, क्योंकि ये रियल नहीं है. अब यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिक्स में एक और पॉइंट आ जाता है. क्लासिकल इकोनॉमिक्स में दो पॉइंट है, एक रियल फैक्टर्स होते हैं और एक लेजेस फेयर है. आपने पक्का सुना होगा लेजेस फेयर के बारे में, अगर नहीं सुना है तो इसमें कुछ नहीं होता. इसमें होता है एक लेजेस फेयर का रूल होता है कि मार्केटों को अकेला छोड़ दो, वो अपने आप वर्क करती रहेगी बिना गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के, बिना किसी इंटरवेंशन के और एनी अदर इंटरवेंशन. गवर्नमेंट को अपने आप छोड़ दो, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड अपने आप हो जाएगी. ये एक लेजेस फेयर का रूल होता है. अब फ्री मार्केट इन द एब्सेंस ऑफ द स्टेट कंट्रोल. रियल फैक्टर्स भी यही होते हैं, फ्री मार्केट मैकेनिज्म, लॉन्ग रन डिटरमिनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, शॉर्ट रन ऑल्सो. तो लॉन्ग रन में भी और शॉर्ट रन में भी यही दोनों फैक्टर्स हैं. क्लासिकल्स के दोनों मेन फैक्टर्स हैं. शॉर्ट रन में रियल फैक्टर्स मैटर करते हैं, मनी, एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम, ये दोनों, ये सभी चीज़ें. ओके गाइस, so we will do the next part from the next class. I hope you enjoy the class, and any doubt you can comment in the comment section. I will happy to answer that. Thank you so much.